तरीके से जो 59 गेंदों पर 103 रन बना दिए थे, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं 25 गेंदों पर 73 रन उनका था। यशस्वी जायसवाल का वो अलग ही लग रहे थे। देखिए, ये ऐसा लग रहा था कि अलग ही सतह पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो जो विकेट है जायसवाल के लिए अलग है, ऋतुराज के लिए अलग है। हालांकि ऋतुराज को भी वो स्टार्ट मिला, जैसे आपने कहा 100 रन की साझेदारी, बहुत अच्छी नींव रखी। या कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़, उनसे हमेशा अपेक्षा रहती है। अभी भी एक अर्धशतक लगा के गए हैं वनडे क्रिकेट में, और उससे काफी कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अर्धशतक लगाते हैं, पहला अर्धशतक अपना वनडे क्रिकेट में। पर मुझे लगा है जायसवाल जिस लय में है उनको रोकना नामुमकिन है। एक तो जो रेंज ऑफ शॉट्स है, और मुझे ऐसा लगता है महावीर, देखिए कई ऐसे खिलाड़ी रहते हैं ना, स्पेशल नजर आते हैं कि लेंथ को बहुत जल्दी परख लेते हैं, पहले पोजीशन में आ जाते हैं। अगर इनको देखें, इनकी ताकत है, बैकफुट में अच्छा खेलते हैं, फ्रंट फुट में जैसे कदमों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक रेंज नजर आती है। आज टाइमिंग इनका गजब का नजर आया है, क्योंकि ये सतह वैसी थी नहीं, पर शुरू से जैसे इन्होंने वो दबदबा बना के रखा, जो कंट्रोल में नजर आए जायसवाल, जैसे गियर बदले, देख के बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल। तो 203 रन नेपाल को बनाने हैं, क्या वो ये कर पाते हैं? चलते हैं सीधे लाइव एक्शन की तरफ। Bowler Arshdeep Singh played a little bit of cricket, believe it or not, in Kent. Played for Kent, went across this year, played some county cricket. Well, they've just about finished county championship in England. It's been pushed into September thanks to the 100 competition. Guys, Nepal game sudah bisa guys, I think he was enjoyed there and some success. But a lovely bowler has the ability to swing the ball back into the right-hander and go across them, but bowls at a decent pace, not express. So, आउनु पर्यो। Oh, how about that? Welcome boundary early on for Nepal. Absolutely middle that one. I mentioned that Birdsall got a few starts. He looks a quality player, and as I mentioned, he might be disappointed that he had gone on in the previous two games, but he would really fancy getting some here against India. Yeah, he's in this tournament a strike rate of over 130, which is good stuff. It's a wide chord from the square leg umpire, thinking about the ramp, I think, and they just got too big. Yeah, this is wide on height. Again, the wide is given as if it's above the batter's head in a standing position. They're up with the rate so far. Sent back, no run there. Quate bowled. That's what we will see, is how quickly India adjusts to the surface that they're playing on. Immediately Arshdeep Singh in his very first over bowling what is called a cutter, which is like a left arm spinner. Had a little nibble of that one. Perhaps thinking about just lifting it over past slip. Well, the man at what would normally be called deep third is almost at a deep backward point rather than a traditional deep third. He's in action now. He's got 50 wickets. There's Arshdeep Singh. Experienced.
Very much a bowler, not much to offer with the bat necessarily. Middle. Want to come. And down the leg side, another wide. And a hand goes up of apology. Yeah, I think he'll be a little bit disappointed with his start here. He is a quality bowler. We do have other seam. Avish Khan, right-arm fast bowler. Ravi Bishnoi is one to look out for, the spinner. Just in front. Just in front, just for a moment. The captain, Quate, was in. साउन्ड ढिलो आएको हो र साउन्ड ढिलो जस्तो लाग्दैन त नेपालमा साउन्ड ढिलो आयो भन्दैन भने चाहिँ कसरी हुन्छ त यार नेट सोलो भयो होला गाइज अब नेट सोलो भयो जस्तो लाग्यो मलाई पनि कस्तो आइरहेको साउन्ड The captain. साउन्ड टाइमिङमै आइरहेछ गाइज साउन्ड टाइमिङमै आइरहेछ अब इन्टरनेट राम्रोसँग Again, that deep backward point. And then a man well, he's in between fine leg and deep square leg. Very much behind square, the majority of the field. Oh, a bit of invention, a little scoop, and it'll be 4. Boundary 4 for Nepal. Well, he's going to give it a go, Bertel, that's for sure. Taking a punt that Avish Khan's going to go full with the first delivery, and so happy to scoop. That's wonderfully played. I mean, it's well outside off stump. We know that he's got the ability. Saw that 35 not out against the Maldives. Came in and enforced his average. Is not far off 50. Much cooler today. Bit of breeze around now. I hope it stays like this for the afternoon game. It gets a bit warm for me. There'll be some support here for the afternoon game as well. Yep. Pakistan making their bow. Looking to be inventive, isn't he, Bertel? Hong Kong have got through. That's who Pakistan will face, and there'll be a lot of support here for Hong Kong. We'll see how they go. Not this time. Swing and a miss. Yeah, really mixing up his pace here, Avish Khan. Slower ball the previous delivery. This one seam up. Oh. Well, just about missed the stumps. Sharp work around the corner from
Making sure. And the other man, along with Jiddish Sharma, the wicketkeeper, who's making his debut. I was just about to say, actually, the keeper, you wouldn't know it. He's busy, he's directing the field. Middle. And so often the wicketkeepers are the energy in the team, and they get a great view of angles to assist captains in getting the field placing just perfect. She gets an edge and just about gets the boundary past slip. Boundary ball for Nepal. Jaswal. बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे मुझे तो कुछ मिला ही नहीं औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी पार्ले जी माने जीनियस। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ साउन्ड सानो आएको छैन, साउन्ड ठिकै आएको छ। अहिले प्रब्लम नेट स्लो भएर होला। अहिले यति त जना लाइभमा हुनुहुन्छ सबै सबैजना चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् ल। सबैजना चाहिँ सब्स्क्राइब गेम मजाले हेरौँ न। Economy rate in domestic T20 under 5.5. Good contact, straight to the man. Yeah, there's lots of hugs, lots of applause, and what a lovely moment. Over the top of the field is inside the ring, and that fast outfield will do the rest. Boundary ball for Nepal. Bertel looking to go over more extra cover, but with the help of a little bit of turn, it goes up and over point. But I like the fact that Nepal are having a go. They are saying, you know what, we're going to take you on. For one team, there is no tomorrow. Don't go home wondering. The extravagant sweep. There's definitely all guns blazing from the off. So the power play, but still just tweaking the field. And he's got enough of that. It should be safe. A fumble in the deep, but got there eventually. Pick it up by the handle, boys. Ravi Bishnoi at long off. It just plugs. When running past, he gives it a hoof. Bang. Well, kicked it. You'll say I kicked it to my teammate. Who then misfielded it. I was probably a little surprised it was coming back to him. Even India can misfield. Little change of field as Kishore pushes long on back and brings mid-off up. Watchful to end the over.
कल नहीं आए, क्या हुआ? सब्सक्राइब गाइड सबैजना त्यहाँ सब्सक्राइब गरौँ 37,000 जना लाइभमा छ नेपाल लभ यु नेपाल गुड लक नेपाल आउनु पर्यो कमेन्टमा गुड लक नेपाल आउनु पर्यो गुड लक नेपाल आउनु पर्यो गुड लक नेपाल गुड लक नेपाल आउनु पर्यो गाइज सबैजनाको है कमेन्टमा रिफ्रेस गरिरहेको छ गाइज रिफ्रेस भइरहेको छ घरिघरि टाइम यस्तै हुन्छ नेट स्लो भएर स्कोर बोर्ड भएन साउन्ड मिलिरहेको छैन भने साउन्ड मिल्छ बिस्तारै भयो गाइज यार के हो साउन्ड मिला भन्नुहुन्छ नेट स्लो छ कति गाली गरिरहेको यार They're interested. Nothing doing. A little bit of nip back in. Second over for Avish. For 9 in his first. That's a handsome shot, and it's gone all the way. Sheikh coming to the party as well. Boundary 6 for Nepal. There's just too much room here, and with the pace that Avesh Khan has, well, to be fair, he's given himself a little bit of room to make that space on the offside. That's beautifully struck. First 6 of the innings. Nepalese fans are calling for a wide. Umpire's not listening to them. He just gave himself room outside that leg stump again. And then sometimes it can be deceiving. You feel as though it's wide because you can't get there, but it's just shaved your off stump. Slip out. Now there's been a touch on that, and they have their first. It's Sheikh who has to go. Keeper gets his first. इस मिट्टी पे घर पापा साहब बेटा घर जिंदगी में एक ही बार बनता है भरोसा के भयो गाइस के भयो साउन्ड आइरहेको छ सही आएको छ त इन्डिया जित्छ भन्दैछ एउटाले अब यहाँ कमेन्टमा केटा गुड लक नेपाल हान्नु पर्यो गुड लक नेपाल कुशल मलाई छक्का छक्का हानिरहेको केटाहरूले हान्न दिनु पर्यो त अलिअलि ताउँछ त 1 विकेट बाइ 29 रन गइरहेको छ के भएछ र 3 ओभर सकेको छ भर्खरै टाइम छ अझै गाइस टाइम छ ब्लक नेपाल हान्नु पर्यो कमन नेपाल ब्लक फ्लक चलिरहेको छ यार हामी कहाँ यस्तो हुन्छ यार सबैजनाले च्यानल सब्सक्राइब गरिदिउँ न 36,000 जना छौँ 36,000 जनाले च्यानल सब्सक्राइब गरिदिउँ न है सबैजनाले सकेसम्म प्लेयरले लाइभ देखाउने प्लान गरिरहेको छु भारत को एक सफलता मिल चुकी है यहाँ पर और नेपाल के पहले विकेट खोया हालांकि अच्छी शुरुआत जरूर हुई थी वहां पर भारत की नेपाल की 23 रन बनाए थे उन्होंने मगर आवेश खान को मिलती हुई पहली सफलता कॉट बिहाइंड हुए वहां पर अच्छी गेंद अच्छा उछाल लेते हुए वहां पर और मगर वाइड का इशारा तो अंपायर का काफी कंधे से ऊपर चली गई थी गेंद और बुरतेल खेल रहे हैं 16 रन बनाकर नए बल्लेबाज के रूप में माला आए हैं जिन्हों का भी खाता खोलना है आवेश खान ने अच्छी गेंदबाजी की अर्शदीप ने उनका साथ दिया मगर बाउंड्री स्ट्रोक्स खेले थे कुछ बल्लेबाजों ने नेपाल की तरफ से एक अच्छी शुरुआत वहां पर हुई थी मगर इसी ओवर में सफलता मिलती हुई आवेश खान को भारत ने 202 रन बनाए थे अपने 20 ओवर निर्धारित 20 ओवर अंतिम ओवरों में काफी अच्छा प्रहार किया रिंकू सिंह और
रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने, और एक अच्छा टारगेट वहां पर दिया है नेपाल को बल्ले चेस करने के लिए। 203 का लक्ष्य है वहां पर, जो थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है, मगर क्रिकेट में कहना कुछ भी अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी की है नेपाल ने इस एशियन गेम्स के अंदर। बुतेल खेल रहे हैं, 16 रन बनाकर माला को अभी अपना खाता खोलना है। अच्छा ओवर अब तक कहा जा सकता है अवेश खान का, चौथा ओवर भारतीय इनिंग का। अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज, ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, कुल योग 30, 1 विकेट नुकसान पर। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी। ओभर समाप्ति भयो। ओभर 4 ओभर 30 रन हानेको छ। 4 ओभरमा 30 रन। मल्ल 8 बलमा 50 रन चाहियो। आज मल्लले अब के हुन्छ, खेल्दै जानु पर्यो होइन, हुनु पनि सक्छ। कमेन्ट पढिरहेको छु ल, म कमेन्ट गर्नुहोस् ल। कमेन्ट गाइज, कमेन्ट हेरौँ। गुड लक नेपाल आउनु पर्यो। कुशल खेल्दा त ढुक्क हुन्छ नि त, कुशल खेल्दा ढुक भइरहन्छ। और एक देखते हैं गेंदबाजी में कोई प्रत्याशी भी हैं गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, मगर कुछ बाउंड्री स्ट्रोक्स बल्लेबाजों ने लगाए थे। बुतेल 16 रन बनाकर खेल रहे हैं, माला को अभी अपना खाता खोल रहे हैं। बाएं हाथ के बल्ले गेंदबाज अर्शदीप राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, और एक इंप्रोवाइज स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बीच हुए वहां पर बल्लेबाज। अपील जरूर हुई हल्के में, मगर कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। अभी भी कुल योग 30 रन। थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था वहां पर अर्शदीप ने। जितेश शर्मा ने अपील की, मगर बॉलर ने उनका साथ नहीं दिया। अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की है, और स्वागत करना चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स में अजय मेहरा का। शुक्रिया प्रवीण। जी हाँ, एक विकेट खो दिया नेपाल ने, थोड़ा एंगल में बदलाव, अच्छी गेंदबाजी। थोड़ा सा आप रूम मत दीजिए, जितना विकेट गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाथ खोलने का प्रयास कर रहे हैं भूरतल। अब इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। नेपाल जानती है कि ये छोटा लक्ष्य नहीं है जिसका वो पीछा कर रहे हैं। 200 से अधिक का जो टारगेट होता है, हमेशा वो एक दबाव रहता है। दबाव इस चीज का भी है कि आप शुरू में ज्यादा विकेट ना खोएं। ये पावर प्ले में कितने रन आते हैं, जब गेंद नहीं है, ठोस है, किस प्रकार आप बल्लेबाजी करेंगे, वो भी अहम रहेगा नेपाल के नजरिए से। इस बार उठा के खेला है, गेंद ऊपर गई है, और मिलेंगे 6 रन। अच्छा संपर्क वहां पे। बढ़िया स्ट्रोक वहां पर खेला वहां पर भूरतल ने, और गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, और गेंद को टॉप अच कर दिया था, और गेंद चली गई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 6 रन। काफी हवा में थी गेंद, और काफी स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी है, और वहां पे वॉलंटियर्स के द्वारा गेंद वापस आती हुई 6 रन अर्जित करते हुए भूरतल अपनी इस इनिंग में 36 पे जा पहुंचा स्कोर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे आक्रामक स्ट्रोक खेले हैं। जब भी उन्हें रूम मिलता है तो अच्छा प्रहार करते हैं वो। गेंद को एक बार अंपायर चेक करते हुए, क्योंकि गेंद स्टेडियम के बाहर गिरी थी, और फिर एक बार फील्डिंग का निरीक्षण करते हुए 4 चौके और 2 छक्के लग सकते हैं अब तक इस नेपाल की इनिंग में। और एक ये भी है ना कि ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, और जो टीम आज हारती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, तो वो भी एक अलग प्रेशर दोनों ही टीमों पे डालती है। नेपाल अपनी फुल स्ट्रेंथ पे है, हमने इनको एशिया कप में देखा था, और अच्छी बल्लेबाजी की थी भारत के विरुद्ध। मुझे एक मुकाबला याद है, अच्छे रन बनाए थे। तो धीरे धीरे टीम उभर के आ रही है। और एक और चीज भी है ना प्रवीण, अगर आप देखें, अब कई हम देशों को देखते हैं जब वो क्रिकेट खेलते हैं, अन्य जगह से अलग अलग नेशन से वो खिलाड़ी आते हैं, वो नेशनैलिटी लेते हैं, पर नेपाल के देखें यही सारे नेपाल के ही खिलाड़ी हैं। बिल्कुल छोटा सा एक कंट्री है, वहां पर जो क्रिकेट है बहुत अच्छी क्रिकेट वहां खेली जाती है। मुझे भी एक मौका मिला था जब 1982-83 में कॉलेज की टीम को जम्मू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हम नेपाल खेलने गए थे। तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ करता था, और वहां पर जब क्रिकेट तब अभी नई नई शुरू हुई थी, तो बड़ा अच्छा लगता था वहां पे क्रिकेट के सेटअप को देख के। वो बड़े अच्छे ग्राउंड्स बन गए हैं, अच्छे स्टेडियम है। नेपाल प्रीमियर लीग भी वहां पर होती है। तो धीरे धीरे क्रिकेट जो है नेपाल में काफी पॉपुलर होती जा रही है, और नेपाल के जो खिलाड़ी हैं उनको काफी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो एक अच्छा नाम बना रहे हैं। अभी हाल में देखा एशिया कप में क्वालिफाई किया, अब एशियन गेम्स में भी 2 मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।
अच्छी वापसी अर्जी द्वारा, पर ये अच्छा शॉट, बिल्कुल सीधे बैट से मिलेंगे 4 रन, 40 पे 1 नेपाल। 4 ओभर 40 रन गाइस, 4 ओभर 40 रन भइरहेको छ। जतिको कमेन्टमा गाली नगरौँ न केटा हो यार, केटाहरूलाई गाली, खेलाडीलाई गाली गरेर के फाइदा। हाम्रो सब्सक्राइब गरौँ, यहाँ 24,000जना छौँ। सब्सक्राइब सब्सक्राइब हानौँ, लाइक हानौँ, सब्सक्राइब ठोकौँ गाइस, सब्सक्राइब ठोकौँ। किन पागल जसरी कमेन्ट गरिरहेछन् यार। कुशल मल्लले फास्ट बल खेल्न अलि सक्दैन हो यार, बुझ्नु पर्यो नि। खेलाडी कस्तो खेलिरहेछ पनि बुझ्नु पर्यो त केटा हो। गाली गरेर हुन्छ भने, गाली गरेर फाइदै छैन नि। चालीस रन, 1 विकेट नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति, 8 रन की गिरफ्त से रन बन रहे हैं। हालांकि 203 रन का लक्ष्य पीछा कर रहे हैं। अभी अच्छी बल्लेबाजी की है, देखना है कि अब गेंदबाजी में कोई परिवर्तन होता है या नहीं। और पावर प्ले का अंतिम ओवर का और कोशिश रहेगी। स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, रवि बिश्नोई आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने हाल ही में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और बड़े गुगली उनकी जो है वो काफी प्रचलित है और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज को थोड़ा सा गेंदबाजी करने में परेशानी जरूर होती है और एक अच्छे गेंदबाज के रूप में उभरे। काफी अच्छे मैचेस उन्होंने खेले हैं भारत की तरफ से और एक अच्छा प्रदर्शन किया है रवि बिश्नोई ने। इस बार हवा में थी पर फील्डर को क्लियर करते हुए मिलेंगे 4 रन। इरादे बिल्कुल स्पष्ट है, जब भी मौका मिलेगा उसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा हल्का सा गेंद को आगे डाला था रवि बिश्नोई ने और टाइमिंग वैसा बैठा नहीं, पर जो इनफील्ड को क्लियर करना चाहते थे वो किया। तेज गति गेंद थी, अब स्टंप लाइन पे गेंदबाजी करने का प्रयास। मिड विकेट के फील्डर ने प्रयास भी किया पर गेंद उनके ऊपर से जाती हुई एक स्लिप तैनात है रवि बिश्नोई के लिए। पावर प्ले का अंतिम ओवर, कोशिश है कि नेपाल के बल्लेबाजों की ज्यादा से ज्यादा इस ओवर में बटोरे जाए और फिर उसके बाद अच्छी गेंद यहां पर ऑफ संपर्क पड़कर और बाहर निकलती हुई। रवि बिश्नोई जानते हैं कि किस तरह से बल्लेबाज को बीट किया जाता है। आप अंकुश लगाया वहां पर उन्होंने, अच्छी गेंदबाजी वहां पर। और ये फर्क है प्रवीण, अगर अभी सतह को देखे ना, थोड़ा दोहरा उछाल है। ये गेंद थोड़ी उठ के ज्यादा उछाल ली, थोड़ा फील्ड में परिवर्तन। अब जो डीप स्क्वेले का फील्डर है उसको अंदर बुलाया गया है, जो मिड विकेट में फील्डर था जहां पे चौका गया था उस फील्डर को पीछे रखा गया है। थोड़ी ज्यादा प्रोटेक्शन है। इस बार डाइव किया शिवम दुबे, शॉर्ट फाइन पे अच्छा प्रयास, अच्छा एफर्ट, 1 रन और मिलेगा। और मुझे लगता है सबसे अहम रहेगा यहाँ पे भूरतल का रोल, क्योंकि उनको वो शुरुआत मिल चुकी है। किसी बल्लेबाज को हमने जो देखा है, जब बड़े रन बनाते हैं, जैसे हमने जायसवाल को देखा, जब एक स्टार्ट मिल जाती है ना, आपकी आंखें जम जाती हैं, पर ये सतह अलग नजर आती है। जब आप नए आते हैं, जैसे जितेश आउट हो गए थे, तिलक वर्मा आउट हो गए थे भारतीय इनिंग्स में, तो वो इतना आसान रहता नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ इस सतह में नजर भी आ रहा है गेंदबाजों के लिए। काफी मैचेस खेले जा चुके हैं इन विकेट के ऊपर, क्योंकि एक ही स्टेडियम है वहां पर और काफी मैचेस यहां पर खेले गए हैं। तो थोड़ा सा जो गेंदबाजी में है वहां पर थोड़ा सा गेंदबाज को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। ये रूम बनाकर उन्होंने कट किया वहां पर, मगर सीधी फील्डर के हाथ में थी। मौका बन सकता था, देखना है कि क्या वो पहले गिर गई गेंद। जायसवाल थे वहां पर, जायसवाल ने अच्छी बल्लेबाजी की है और भुरतल जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक अच्छा स्टार्ट उन्हें मिल चुका है। वो चाहेंगे कि इसको बड़ी पारी में कन्वर्ट करें। काफी ओहो, अगर ये प्रयास करते तो शायद आगे डाइव लगाते तो मौका बन सकता था। उन्होंने गेंद के आने का इंतजार किया, गेंद थोड़ा सा उनसे पहले गिर गई और फिर गेंद को खेला ऑन साइड पर और 1 रन रहे बल्लेबाजों ने। 46 रन 1 विकेट नुकसान पर नेपाल। गाइज नेपालले जित्नु पर्छ गाइज। सबजनाले च्यानल सब्सक्राइब गरिदिउँ ल। लगभग 50,000जना लाइभमा छौँ। सब्सक्राइब गरिदिउँ, सबैजना च्यानल सब्सक्राइब गरिदिउँ अनि भिडियोलाई लाइक गरौँ है, लाइभलाई लाइक गरौँ, सक्दो लाइक गरौँ अनि सेयर गरौँ। सबैजनाले हेर्नलाई गेम मजाले हेर्नु पऱ्यो नि लास्टसम्म होइन। ल गाइज, कमेन्ट कमेन्ट कमेन्ट
कमेन्ट गर्नको लागि यस्तै नै सब्स्क्राइब गरेर कमेन्ट बक्समा आऊ है गाइस, च्यानल सब्स्क्राइब गरौँ, कमेन्ट बक्समा आऊ है सबैजना। नेपालले जित्नुपर्छ, गुड लक नेपाल आउनु पर्यो, गुड लक नेपाल पनि आउनु पर्यो है, गुड लक नेपाल, गुड लक नेपाल, गुड लक नेपाल, गुड लक नेपाल गाइस। और एक बार फिर बुर्तल जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 25 गेंदों पर 27 रन बनाए हैं, अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दी थी, मगर अभी भी भारतीय गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हुए। पावर प्ले खत्म हो चुका है। क्या साई किशोर, अब ये भारत का रैंकिंग देखिए, पिछले कल जो खेल खत्म हुए थे तो भारत ने 60 मेडल जीत चुके थे, क्योंकि अब टारगेट इस बार था, अब की बारी 100 के बार क्या भारत के कंटिजेंट ये 100 मेडल जीत के लाता है, क्योंकि काफी मेडल्स काफी प्रतियोगिता भी बाकी हैं और काफी अच्छी टीमें हमारे एथलेटिक्स क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल्स के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत इस बार 100 के पार जरूर जाएगा। जी, और काफी उम्मीदें ये पुरुष क्रिकेट टीम से भी हैं जो भाग ले रही हैं। जो भी वर्तमान मुकाबला ये चल रहा है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला, महिला टीम ने वो गोल्ड जीता था, तो काफी अपेक्षाएं ये मेंस टीम से भी है भारत को, किस प्रकार इनका प्रदर्शन रहता है। एक बड़ी चुनौती नेपाल के सामने इस मुकाबले में 203 रन की दरकार है, और इस बार क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास, क्योंकि लंबे कद के हैं और थोड़ा सा गेंद को हवा भी देते हैं, तो यहां पे टर्न जरूर मिलेगी साई किशोर को। लेंथ भी अगर आप देखिए, गेंद को आगे रख रहे हैं, वो टर्न के साथ उछाल भी नजर आती हुई, और उछाल इस सतह में है। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, फिर चूके, और ये टेस्ट रहेगा अब दोनों बैटर्स के लिए, भूरतल और मल्ला के लिए, किस प्रकार स्पिनर्स को ये हैंडल करते हैं। रवि बिश्नोई का हमने ओवर देखा, बहुत अच्छी गेंदबाजी भी करे, थोड़ी सी जब गेंद पड़ी थी थोड़ी सी मिट्टी निकली, वहां पे थोड़ी धूल निकली है, तो ये बल्लेबाजों के काफी मुश्किल होगा कि भारतीय स्पिनर्स काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तीनों ही गेंद काफी टर्न हुई और बल्लेबाज को बीट करते हुए, और ये अच्छी बात नजर आती हुई भारतीय स्पिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी वाशिंगटन सुंदर ने भी गेंदबाजी करनी है, रवि बिश्नोई ने बड़ा अच्छा ओवर डाला था, और देखिए गेंद काफी टर्न हो रहा है और उछाल भी ले रहा है, तो संभवतः यहाँ स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि अच्छी गेंदबाजी। अब धीरे से खेला उसे ऑफ साइड पर, और 7 ओवर की समाप्ति कल कुल 48 रन 1 विकेट नुकसान पर। चलो 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 टेक अ ब्रेक, चलो वहाँ हर बाइट में रियल मिल गया जहाँ। चलो 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 लेट्स ऑल गो फॉर एन गाइस हामी 48,000 जना छौँ, लाइक पुर्याउनु पर्यो कि लाइक पुर्याउनु पर्यो, लाइक पुगेन। गुड लक नेपाल पनि आउनु पर्यो, गुड लक नेपाल पनि आउनु पर्यो है, कमेन्टमा गुड लक नेपाल आउनु पर्यो, गुड लक नेपाल आउनु पर्यो गाइस। हामी 27,000 जना छौँ, गुड लक नेपाल सबले कमेन्टमा आउनु पर्यो ल, सबजना सब्सक्राइब गरेर कमेन्ट बक्समा आउनु, सब्सक्राइब गरेर। और रवि बिश्नोई आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, 7 ओवर की खेल चुका है, और अच्छी गेंद, देखते हैं कि बाहरी किनारा लगा है कि नहीं, अपील की जा रही है वहां पर, शायद अंपायर इशारा कर रहे हैं कि थाई पैड को लगकर गेंद गई है। स्प्लिक के फील्डर बहुत कॉन्फिडेंट थे, और मैं अजय मेरा सा देखना पहुंचना चाहूंगा कि वुड को क्या लग रहा है कि ये फील्ड बल्ले से बहुत करीब थे। जी हाँ बिल्कुल, और पिछला जो थाई पैड है उससे गेंद लगी और वो आवाज सुनाई दी थी, तभी वो जो प्रतिक्रिया है रवि बिश्नोई की, उनको लगा कि शायद बल्ला लगा है, वो आवाज, वो डिफ्लेक्शन, पर मल्ला का भी यही इशारा था, वो भी कह रहे थे कि यह मेरे थाई पैड से छूते हुई गेंद गई है, पर अच्छा मिशन कर रहे हैं वो, गुगली का अच्छा प्रयोग कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर के विरुद्ध। साई किशोर डीप में 1 रन और मिलेगा। वो जैसी स्पिनर्स आए ना, वो जो बाउंड्रीज हैं वो सूख सी गई हैं, वो बड़े शॉट लगाने का प्रयास कर रहे थे पिछले ओवरों में भी साई किशोर के, गेंद थोड़ा हरकत भी कर रहा है, थोड़ी सी अब गेंद ग्रिप भी कर रही है सतह को, जैसे अब भूरतल स्ट्राइक पे आए हैं, एक डीप मिड विकेट तैनात, एक डीप स्क्वायर, एक लॉन्ग ऑन, 3 बाउंड्री राइडर्स ऑन साइड पे, 27 पे है भूरतल, 29 गेंदों का सामना किया है, 8वां ओवर। प्रगति पर फिर से गेंद वो हल्का सा टर्न और उछाल, 1-1 रन से बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि 5-6 रन भी आएंगे, वो रिक्वायर्ड रन रेट प्रवीण वो ऊपर जाते ही जाएगा और वो प्रेशर बढ़ता जाएगा। 50 रन पूरे हुए नेपाल के सिंगल के तहत, और बाउंड्री स्ट्रोक तो चाहिए हर ओवर पर, अगर भारत का इस लक्ष्य का पीछा करना है नेपाल को। 203 रन बनाने हैं 20 ओवर, अगर मैच को जीतना है और आगे बढ़ना है, मगर
भारतीय गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है। जब से स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे हैं, रनों पे अंकुश लगा है और ये हवा में खेला गया स्ट्रोक, ये चांस जरूर लिया वहां पर। थर्ड मैन की तरफ गेंद चली जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ये भाग्य ने साथ दिया। जिस जगह पे खेलना चाहते, जिस क्षेत्र में खेलना चाहते वहां तो गेंद गई नहीं और टॉप एज, और कहते हैं ना रन कैसे भी आए, ये फॉर्मेट ऐसे है कि रन आने जरूरी है। ऑन साइड में खेलने का प्रयास, निगाहें गेंद के ऊपर थी नहीं, टॉप एज, एक स्लिप तैनात थी। अगर शॉर्ट थर्ड का फील्डर होता तो शायद हाथ में जाता, पर क्योंकि एक स्लिप तैनात थी, अब वो जगह पे कोई फील्डर था नहीं, तभी 4 रन और मिलते हुए यहाँ पे नेपाल को। अब शायद वो खिलाड़ी को स्लिप से निकाल के शॉर्ट थर्ड मैन पर रखा है रवि बिश्नोई, जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अपनी गुगलीज के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। ड्राइव किया उसे ऑन साइड पर, 1 रन जरूर मिलेगा वहां पर। एक बाउंड्री स्ट्रोक जरूर इस ओवर में आया, मगर अभी भी रन गति जो है बहुत पीछे है और काफी रन बनाने हैं अभी भी। 55 रन बने हैं, 1 विकेट नुकसान पर। 203 रन का लक्ष्य का पीछे तो नेपाल की टीम 8 ओवर की समाप्ति के आसपास है ये लोग। और बुर्तल काफी देर से बल्लेबाजी कर रही है, जो आए हैं उन्होंने 12 रन बनाए हैं और एक बार फिर गेंद को कट किया वहां पर, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड किया गया और रन नहीं आया। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति, 55, 1 विकेट नुकसान पर। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और 55 रन बने हैं, 1 विकेट नुकसान पर। 8 ओवर खेले जा चुके हैं, 12 ओवर रन बनाने हैं, 178 और बहुत मुश्किल, माफ कीजिए 168 रन बनाने हैं। और ये हवा में खेला गया स्ट्रोक है, ऊपर गेंद थी और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। बढ़िया स्ट्रोक वहां पर माला के बल्ले से निकलता है। या शायद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे माला यहाँ पे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी कर रहा है, विद द टर्न खेलना, वो बड़ा शॉट, और जो स्क्वायर बाउंड्रीज भी हैं इतनी बड़ी है नहीं। ये शानदार शॉट था, गेंद को आगे डाला था, स्लॉट में गेंद थी, क्योंकि दाहिने हाथ के बैटर के विरुद्ध थोड़ा सा अलग रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि अब टर्न होकर गेंद अंदर की तरफ आ रही है तो वो पिक करना आसान, वो एंगल का अच्छा इस्तेमाल किया। इस बार वो अब सिंगल मिलेगा आवेश फील्डर शॉट थर्ड पे। पर नेपाल जानती है कि कुछ अच्छे ओवर्स यहाँ पे चाहिए, कुछ बड़े ओवर्स आपको चाहिए। लक्ष्य 203 का पिछले अब 3 या 4 ओवर वो भारत के लिए पक्ष में रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी की है। अभी भी अब लेफ्ट हैंडर स्ट्राइक पे, इस बार वो अब स्वीप करने का प्रयास, थोड़ा फंस से गए थे, क्रैम्प हो गए थे। अच्छी वापसी की साई किशोर ने वहां पर। पहली गेंद पे बाउंड्री स्ट्रोक जरूर आया था वहां पर, मगर 2 डॉट बॉल्स डालकर फिर प्रेशर दोबारा वहां पर नेपाल के बल्लेबाजों के ऊपर। काफी रन बनाने, 152 रन और बनाने हैं इसको मैच को जीतने के लिए। माला खेल रहे हैं 18 रन बनाकर और बुर्तल खेल रहे हैं, एक बार फिर उसे खेल दिया है। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन जरूर मिलेगा वहां पर। तिलक राज वर्मा थे वहां पर और आज बहुत अच्छा बल्लेबाजी से प्रदर्शन नहीं कर गए। बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, मगर अभी भी शायद उस तरह से बल्लेबाजी नहीं कर पाए जिसके लिए जाने जाते हैं। आईपीएल में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था तिलक राज वर्मा ने। बुर्तल आए स्ट्राइक पर। नेपाल 62, 1 विकेट नुकसान पर। ये 9वां ओवर चल रहा है। अच्छी वापसी की वहां पर साई किशोर ने इस ओवर में, और ये कैच वहां पर आवेश खान ने पकड़ा है और बहुत बढ़िया विकेट वहां पर मिलता हुआ भारत को। 62 रन 2 विकेट नुकसान पर। इस मिट्टी पे घर पापा साहब बेटा, घर जिंदगी। विकेट हानो केटाहरूले, विकेट हानो, विकेट हानो। 62 रन 8 ओभर 2 विकेट गेम भइरहेछ गाइज। सबैजना सब्सक्राइब गरिदिउँ, 48,000 छौँ, सब्सक्राइब गरिदिउँ। लाइक आएन गाइज, लाइक भएन।
खेलाडीलाई गाली गर्नुभन्दा सब्सक्राइब गरौँ गाइज होइन, खेलाडीलाई गाली नगरौँ। खेलाडीहरूलाई खेल्न गाह्रो भइरहेछ त्यो अवस्थामा। सबजना 48,000 जना छौँ, सबैजनाले भिडियोलाई लाइक गरौँ है, लाइक गरौँ। लाइक नै पुगेन, लाइक पुऱ्याउनु पऱ्यो, लाइक टन्नै पुऱ्याउनु पऱ्यो है। सब्सक्राइब पनि बढाउनु पऱ्यो। 44,000 जना छौँ गाइज। सर एक सब्सक्राइब हानिदिनु सबैजनालाई, सर सब्सक्राइब ठोकिदियो त, सब्सक्राइब ठोकिदियो सबजना। गुड लक नेपाल गाउनु पऱ्यो, गुड लक नेपाल। किस तरह गेंदबाजी करी थी वहां पर, थोड़ा शॉर्ट गेंद जरूर थी, इम्प्रोवाइज करना चाहते थे वहां पर, मगर शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी आवेश खान मौजूद थे, बढ़िया डाइव लगा के उन्होंने कैच पकड़ा और ये भारत को मिलने वाली दूसरी सफलता। यहाँ तेज गेंदबाज हैं पर बहुत अच्छा एफर्ट वहां पे आवेश खान का। एक बड़ी विकेट मिलती हुई एक सेट बैटर वापस जाता हुआ भूरतल के रूप में। साई किशोर अच्छी गेंदबाजी आकार परिणाम जो सफलता उनको मिली है। भारतीय समर्थक भारतीय फैंस काफी खुश। पॉडल आए हैं जो कप्तान है अब नेपाल के। इनके पास वो एक्सपीरियंस है, एक स्लिप थे ना, थोड़ा दबाव में इस समय नेपाल की टीम। अच्छा एफर्ट, बहुत ही बढ़िया एफर्ट। अच्छा ओवर 62 पे 2। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। एक और सफलता वहां मिली थी भारत को। अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, वाशिंगटन सुंदर को लाया गया है और देखना है कि वाशिंगटन सुंदर किस तरह की गेंदबाजी, ऑफ स्पिनर हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। ड्राइव किया उसे ऑफ साइड पे एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड किया जाएगा, मगर बल्लेबाज के ऐसा समय होगा 2 रन जरूर वहां पर अर्जित होंगे। माला के साथ अब कप्तान रोहित पुलेल साथ देने आए हैं उनका। 10वां ओवर चल रहा है, 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब सारा दारोमदार माला के ऊपर आ गया, उनको तेजी से बल्लेबाजी करनी होगी और रन बनाने होंगे और पूरा साथ देना होगा कप्तान रोहित को, जो कि काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। ये शायद ऑफ स्पिनर के विरुद्ध माला जब स्ट्राइक पे इतना आसान रहेगा नहीं, क्योंकि अब गेंद भारत की तरफ टर्न कर रहा होगा। इस बार बड़ा शॉट और इस बार पूरी ताकत वहां पे झोंक दी, यानी कि 6 रन और। अब इनमें वो क्षमता है, वो बड़े शॉट लगा सकते हैं और ये अच्छा शॉट था क्योंकि स्पिन के विरुद्ध खेला हुआ शॉट था। देखिए कैसे अब वो लेंथ को परख लिया था, बैट फ्लो गजब का। टाइमिंग बहुत बढ़िया थी, शुरू से जैसे उन्होंने स्ट्रोक खेला उनको मालूम था कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। बहुत आत्मविश्वास से बल्लेबाजी कर रहे हैं माला। हालांकि ये इनिंग में 7 चौके और 4 छक्के आए हैं और 70 2 विकेट के नुकसान पर अर्जुन सिंह। आज भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है और ये बहुत अच्छी बात है। और मेडल तालिका में भारत आगे बढ़ता जा रहा है। एथलेटिक्स में भी भारत की 400 मीटर रिले में फाइनल में प्रवेश किया, वुमेन्स की 800 मीटर में भी फाइनल में प्रवेश किया वहां पर। तो भारतीय एथलीट्स भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं एशियन गेम्स में। एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद का ही फाइनल लेग की तरफ फील्ड किया वहां पर। साई किशोर ने 1 रन जरूर मिला, 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। माला जानते हैं कि अब भूरतल आउट हो चुके हैं तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पॉडल अभी भी आए हैं, शायद थोड़ा सा समय ले, थोड़ा सतह को समझे, पर ज्यादा समय है नहीं उनके पास। 10वां ओवर इस इनिंग्स का जो फील्ड सजाई हुई है, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, फाइनल लेग सर्कल के अंदर एक डीप कवर पॉइंट। एक और विकल्प है बतौर एक ऑफ स्पिनर, वो है तिलक वर्मा। भारतीय भी अब 4थे रैंक पे भारतीय टीम। इस बार थोड़ा क्रॉस लाइन खेला, फील्डर डीप में तैनात अर्शदीप और अच्छी दौड़ विकेट के बीच में। काफी तेजी से रन लिया वहां पर, थोड़ा सा चांस दिया वहां पर अर्शदीप फील्ड से। और हालांकि थ्रो आया था उनका, थोड़ा सा थ्रो थोड़ा दूर था, मगर फील्डर बल्लेबाज दोनों ही सुरक्षित अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे और बहुत तेजी से थ्रो किया था, मगर थोड़ा सा लेट हुए।
और आगे ड्राइव करना चाहते थे, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी करते हुए वहां पर वाशिंगटन सुंदर। और ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति, 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। Keep support guys, सबैजनाले लाइभमा जो हुनुभएको छ सबैजनाले कमेन्ट गरौँ ल, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ। गाइज लाइक पुगेन गाइज, लाइक हान्नु पर्यो है, सब्स्क्राइब गरौँ गाइज। यो भुर्तेलले बल खाएर के भन्छन् कमेन्टमा यार, केही बुझिँदैन हो, को हो फेरि यो डिजिटल के लेख्ने होला। 150 गाह्रो छ अरे, 150 कमेन्ट गर्छ हो, अझै बढी गर्छ। हर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। गाइज यहाँ गाइजहरूको फोन आउनु थालिसक्यो गाइज, सबैजनाले सब्स्क्राइब गरिदिउँ है, सबैजनाले सब्स्क्राइब गरिदिउँ च्यानललाई। The athletes area, isn't it? Bangladesh I saw down there. I saw Cambodia there a little bit earlier because I saw Bierkus. Hello. Very recognisable amongst the Cambodian team. Did you get a word to work out the... कति गाडी गर्नु, अर्को फोन आएको आइछ यार गाइज। I know you're curious. ल Ask. In Cambodia out of the competition but find themselves here watching, which is great. Why wouldn't you? Just look at first hand. And the locals soaking it in. The Indian fans, they look confident, don't they? And they will all leave at the conclusion of this game, and new spectators will be allowed in to watch Pakistan take on Hong Kong, China. Yeah, your ticket only gets you in for one match. Some have been more entertaining than others, I guess. They're fairly high up on the medal table, I see India. They're within the top 5 nations. Always at the Asian Games are there or they're at China miles in front. They've had a very good games, home games of course. Next over. Nepal are pleased it's not 33 degrees. So Bishnoi changes ends now from the grandstand end. I'll have to hurry back. The time comes, he didn't know it was quite wide of the stumps. A reproachful look back over his shoulder. Yeah, and I think Pudel will be the busy one. He'll be looking to scamper and run, whereas Marla's just waiting for something in his area to try and find a boundary. That is an easier single. India won't mind that as the run rate misfield. The run rate for each single will mean the run rate goes up. Immediately though, you can see the lengths that India are trying to find against Marla now. They know that if they get it too full, he will punish them. So they're almost back of a length to him. Wide ball. It's like you were saying, it's a fast approach to the wicket. The ball is not looped up, is it, in any shape or form?
Just a single. A lot of the spinners in T20 cricket are they bowl quite quickly. You think of Rashid Khan as well, Sunil Narayan, quite quick through the air, not the traditional sort of spinners that give it that bit of air. You don't really have that much time to create a narrative against a batter, do you? 4 overs. They're not looking to look at you. They just want to hit it out the ground. Like that, but I don't think there's enough on it. There's a fielder there. Oh, it's wonderfully done. Wonderfully done, and Mala will have to go. Well, this is what people want to see. They will go upstairs just to see if this catch has been taken legally. But that is a wonderful bit of work in the deep. I mean, it's one thing that mid-on initially takes the catch, but also that Rinku Singh comes running from mid-off to support. So often teams wouldn't do that. They would just leave a fielder to try and take the catch. But Rinku Singh goes with Rahul Tripathi, who must be on the ground to as a substitute fielder, and Tripathi just lobs it back in before he goes over the boundary, and Singh takes the simplest of catches to get rid of arguably the most dangerous man that Nepal have, Kushal Mala. 29 off 22, but he has to go. The new batter for Nepal, number 45. I think it's absolutely fine. Dipendra. What great work that was. That's what T20 is all about. It's crept into all aspects of the game. You'll see it in test matches as well, but that's kind of where it originated. Airy to the crease. Big moment for him. Can he keep his record up of hitting his very first ball that he faces for 6 against Mongolia? His first delivery went out the ground, and against the Maldives his first delivery went out the ground. That's an excellent stat. He tried his very best. Could have been out first ball. He did. Now with that 52, and most importantly 50 off 9 record against Mongolia. Poor old Mongolia got absolutely battered. Learnt a lot, but they got battered. Big appeal, and he's given. He's given, and Nepal are starting to implode here. बेडरूम का कबड़ देखो ढूंढो ढूंढो माल कहीं नहीं मिला 4 विकेट गयो गाइज गुड लक नेपाल हान्नु पर्ला जस्तो छ गुड लक नेपाल गाह्रो भइरहेको छ गाइज 11 ओभर 77 रन 4 विकेट गाह्रो पर्ला जस्तो छ गाइज गाह्रो पर्ला जस्तो नेपाललाई गाह्रो पर्ला जस्तो छ किप सपोर्ट गाइज सबैजनाले सपोर्ट गरौँ गाइज हामी 50,000 जना छौँ 50,000 जना सब्स्क्राइब गरौँ बट्टाबाट सब्स्क्राइब ठोकौँ गाइज सब्स्क्राइब ठोकौँ हामीलाई सबैजना एसियोमा 1-1 रुपियाँ हालिरहनु भएको छ गाइजहरूले एसियोमा 1-1 रुपियाँ हालेर पनि नाम लिन्छु म ल पेसल शाह हाम्रो 51 रुपियाँ हाल्नु सनराइज ब्याङ्कबाट हाल्नु भएको छ एकजनाले अनि उमा सरुले 1 रुपियाँ हाल्नु भएको छ गाइज सो सबैजना Two new batters, that's exactly what India would have wanted. Shivam Dubey, the new man, into the attack, just medium pace. That's an edge, but it will go all the way.
Wow. Well, his, Boundary 6 for Nepal. second ball went for 6. He comes out swinging, does Airy. He tried off his first ball, didn't middle it. He tries off his second, doesn't middle this, but there's enough on it to go over fine leg for 6. They're breathing. Nepal are breathing, but only just. No! A new strip for this match. It's taken spin, but it's not moved sideways like the beginning of this competition it was. There's a green covering. It looks as though they might go there for the afternoon game. That's been used already, so we might see a little bit more there. There's so many games. There's the women's tournament, of course, and the men's. It's not a big boundary either side, so you haven't got much wiggle room. Mary will just take the single. We haven't really seen a lot, have we, of the other Nepalese batters? We've seen Jar, the left-hander, who hasn't walked in yet. But the top order have done all the work for them in their opening 2 games. You don't really know what the tail has to offer. Come through for a quick single. Easy enough. And they'll take a buzzer as well, an overthrow. Bishnoi, the fielder here at cover, comes swooping in, but they were home. I don't think he needed to throw it. Running the first one very quickly indeed. Still a ball to go, 10 off it this over already. Dubé not the most economical in T20 internationals. He is going at around 10. Yeah, just a gentle medium pacer, no real speed about him. So you'll have to have some other skills, some cutters, off cutters, leg cutters, slower balls. By this stage of the innings, out with the white ball, the swing is almost negligible. It's got a top edge. Oh, no. Calling this leg buys, they're just calling on the trainer. He'll just have to do some. गाइज कल धेरै आयो है, कल नगरौँ न है, सबैजनाको कल आएको आइछ, कल नगरौँ ल। किप सपोर्ट गाइज, सबैजनाले सब्सक्राइब गरौँ, च्यानल सब्सक्राइब गरौँ, किप सपोर्ट गरौँ सबैजनाले है। हामी 44,000 जना छौँ, सबैजनाले सपोर्ट गरौँ, सबैजनाले है। गेम भइरहेको छ गाइज। फोन आएको आइछ गाइज, फोन धेरै नगरौँ, सबैजनालाई आग्रह गर्छु म। Stadium end. The 12th over concluded. 88 runs for Nepal. 4 batters out. And we will look to wind up, I'm sure, again. In reverse. Big appeal from the keeper, nothing doing. Could have helped with a bit of support from the bowler, who obviously thought that was not going to hit the stumps.
last over. Sakishore. Reverse again. They have to hurry through for the single. And they're going to go for a second as well. That's good running. Well, this is a very, very interesting mix-up, this, because Sakishore, as the bowler, goes to back up the keeper, and the backward point throws it at the bowler's end. I'm sure the coach will have something to say about that. And he goes behind his own wickets this time. And I think India they're okay with just letting singles go by. And ordinarily they would be a bit tighter in there at backward point, trying to prevent the one, but singles ain't winning the game as the required rate goes above 15. Going well. To run hard this time. Ooh, direct hit would have been interesting. What you say, HD? Hustling and bustling, but hustle and bustle is not going to be enough. Yeah, as you mentioned earlier, you know, even a single sees the rate required go up because you need more than a runner ball. But good that Nepal are happy to take those runs in the hope that they can find a boundary somewhere in the over. The thing is, they need more than one now. They need a couple of boundaries and over. Got hold of that one, and it'll go all the way for 6. Yeah, great shot from Jora. Kishore will be a little bit upset with himself because this is the first one that he's overpitched. This one up, around, off stump, and that's a lovely shot over extra cover all the way. So those singles, they play a part if this can happen. If you can find इस मिट्टी पे घर पापा साहब बेटा गाइज कीप सपोर्ट गाइज, सबैजनाले गेम सपोर्ट गर्नु पर्यो है। 99/4 13 ओभर सकिसकेको छ गाइज, 13 ओभर सकिसकेको छ। 13 ओभरमा 99 रन आएको छ गाइज। कीप सपोर्ट गर्नु पर्यो, सबैजनाले सपोर्ट गर्नु पर्यो है। सबैजनाको सपोर्ट आउनु पर्यो, सबैजनाको सपोर्ट आउनु पर्यो है। For Airy, he's a tiny man as well, so length has to be right. Continuing. Yeah, 10 off his first over. I think do that again. They're moving along nicely, Nepal. And that is a massive top edge into the crowd. Watch out! Into the Indian contingent. They were trying to catch it. Boundary 6 for Nepal. how far does this top edge go. It is amazing. I mean, Shivam Dubé is not the quickest bowler in the world, not by any stretch of the imagination, but it is such a swing at the ball that once it finds the edge, it just flies over the boundary. India have used 6 bowlers. I'm not sure Dubé is going to get another one after this. There isn't really a need. And that will go into the crowd again. Oh, I think it just about missed up. Yeah, throw it back. There you go. Hope you heard it coming. He's finding his stride now. Airy, that's back-to-back sixes. This one out the middle of the bat. Right, an opportunity at a very big over here. Dubé will be rattled. Still 3 balls of it to go. He has been expensive.
It's going to go all the way again. Just. This is sweet. This is a sweet shot because Dubé this time bowls a slower ball. And Airy has to wait as he comes charging down the wicket and flat bats it for 6. Talking about his height, he had to kind of almost hop and reach it. Wow. 1-1-1 for 4. Can he keep this momentum? They will look, but we've told him. Yeah, quite comfortably. Can they keep this momentum? You'd almost be happy he went for a review just to interrupt that momentum. Conversations. Singh has come all the way from the other side of the field to have a conversation, and he is going to stay over at keep extra cover. Well, Arshdeep Singh has 2. He hasn't been at his best, but he does bowl well at the back end, the left armour. And that is going to be a race to save the... And they just about saved the boundary. Good work in the deep again from India. This is excellent fielding. Yeah, Arshdeep Singh has 2, the left arm seamer. Ravi Bishnoi has 1, the spinner. Avesh Khan has 2. So you would think that Dubé won't bowl again, and maybe Washington Sundar will bowl just the 1 over to make up the 4. He's going to run hard, but it'll just be a single. Well, that was a bit breathless, wasn't it? I think 21 off the over. Certainly those 3 6s. Guys, keep support. 14 ओभरमा 120 रन गाइज, बाँकी छ 6 ओभर यार, 200 क्रस गर्नु पर्यो 6 ओभरमा गाइज। सबैजनाले सपोर्ट गरौँ यार गाइज। फोन नगरौँ गाइज, फोन गरेर कहाँ हुन्छ, यो इस्यु आइडी पो हो त, फोन गर्ने हो त, इस्यु खल्ती आइडी हो, फोन नगरौँ ल। धेरैजनाको फोन आएको आइछ, सो फोन धेरै नगरौँ। अनि हामी गेम भट्टाबाट गेम हेरौँ, किप सपोर्ट गरौँ, सब्सक्राइब गरौँ। 50,000 जना लाइभमा छौँ, सबैजनाले च्यानल सब्सक्राइब गरौँ है, सबैजनाले च्यानल सब्सक्राइब गरौँ, सपोर्ट गरौँ है। और फिर स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पे। और शानदार ओवर रहा था पिछला, जिसमें डेयरी ने 3 छक्के लगाए थे शिवम दुबे गेंद पे, और अच्छी रनिंग विकेट पे 2 रन चुरा लिए बल्लेबाजों ने। 122 रन 4 विकेट नुकसान पर। स्वागत करना चाहूंगा अजय मेहरा का कमेंट्री बॉक्स में। शुक्रिया प्रवीण जी। अगर आप देखें, हैरी ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी किया और ये अच्छा मुकाबला उनके लिए गया है। गेंद के साथ अच्छा कार्य किया, फील्ड में मुझे याद है अंतिम ओवर में जो छक्का बचाया था, और अब बल्ले के साथ अपना योगदान देते हुए, हालांकि अभी भी कठिन है नेपाल के लिए, पर एक उम्मीद जागी है। जैसे पिछला ओवर घटा था, वो बड़े शॉट्स लगाए थे बिश्नोई। पुल करने का प्रयास, टाइमिंग वैसा है नहीं, और सीधा फील्डर के हाथ में। साई किशोर ने कोई गलती नहीं की। अच्छा कैच डीप में, बड़ी विकेट मिलती है, एक और सफलता। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके गाइज फोन अति आयो यार, फोन अति आयो, फोन धेरै नगरौँ है गाइज, फोन धेरै नगरौँ यार, फोन अति आयो यार। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। क्यों है? वो तेरी टैंक के चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है।
कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अच्छी गेंदबाजी, एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और ये एक समस्या है, जब नया बैटर आता है थोड़ा सा समय लेता है। कामी आए हैं नए बल्लेबाज नेपाल के लिए, हालांकि अच्छा मिश्रण दिखाया है रवि बिश्नोई ने। गुगली का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। जोरा भी अब ज्यादा देर से क्रीज पे है नहीं। भारत अभी चौथे रैंक पे, अगर मेडल्स की बात करें, चौथे मैदान पे। और अब एक उम्मीद जरूर है भारतीय पुरुष टीम से कि ये जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला अगर आप जीतते हैं तो अब फिर वो अब गोल्ड मेडल की उम्मीद जरूर जागेगी। भारत कोशिश रहेगी भारत की कि एक क्रिकेट में दूसरा मेडल लेके आए, क्योंकि वो महिलाएं ऑलरेडी एक मेडल जीत चुके हैं, गोल्ड मेडल। और भारतीय कोशिश, अच्छी गेंद वहां पर टीम गेंद को निकाल दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और मिशन कर रहे हैं वहां पर, दो सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। अभी भी नेपाल काफी दूर है, 70 रन और बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, और 5 ओवर खेल बाकी है। मुश्किल कार्य जरूर है मगर असंभव नहीं है, अगर हालांकि अभी बैटर्स उतने नहीं बाकी बचे हैं। एरी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, 3 छक्के लगाकर एक उम्मीद जगाई थी नेपाल के कैंप में। जोरा भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पर फील्ड किया जाएगा, जरूर मिलेगा। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 128, 5 विकेट नुकसान पर। क्यों है? उतनी टैंके चल क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। नो फ्रूट्स ऑन प्लेन। देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अर्शदीप आए हैं, वापसी करते हैं और देखते हैं कि वो अपने अंतिम के उनके 1 ओवर उनका शायद बाकी है। और ये मेडल टैली में देखिए भारत ने चौथे स्थान पर है, 61 मेडल भारत जीत चुका है। और अब की बार 100 के पार का जो नारा था वो शायद पूरा होता नजर आया। भारत की रैंकिंग देखिए, 13 गोल्ड मेडल, 24 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज मेडल। ये उठाकर खेला है। देखते हैं कि गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए बढ़िया स्ट्रोक वहां पर जोरा के बल्ले से निकलता है। ये प्रयास कर रही है नेपाल। और हालांकि देखिए भारत कंप्लेसेंट नहीं हो सकता, आसान नहीं ले सकता, क्योंकि 10 छक्के इस इनिंग्स में लग चुके हैं, साथ में 8 चौके। और ये एक जबरदस्त शॉट था, काफी ताकत थी इस शॉट में, लेंथ को बहुत जल्दी परख लिया था। और बैट फ्लो देखिए कितना शानदार, वो बैट फ्लो, बहुत दूर गेंद जाके गिरी है। ये लंबी बाउंड्री भी है और काफी बिल्कुल साइड स्क्रीन के सामने जाके गेंद गिरी। 69 रन 29 गेंदों में। इस बार वो कट करने का प्रयास चूके वहां पे। अगर भारतीय गेंदबाजी की बात करें, तीसरा ओवर है ये अर्शदीप का। अवेश खान 2 ओवर 16 रन 1 विकेट। रवि बिश्नोई को 3 सफलताएं मिली और सबसे अच्छी गेंदबाजी की रवि बिश्नोई ने, 4 ओवर 24 रन और 3 विकेट। वॉशिंगटन सुंदर अपने एकमात्र ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए। शिवम दुबे ने 2 ओवर में 31 रन। ये एक थोड़ा सा भारत का वीक लिंक कहा जा सकता है, कमजोर कड़ी कही जा सकती है। हालांकि छठे बॉलर के रूप में शिवम दुबे का इस्तेमाल किया गया था। अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की है, 1-2 ओवर के बाद फिर एक गेंद को निकाल दिया। ये ओवर काफी महंगा साबित होता है और एक और बाउंड्री स्ट्रोक छक्का आता हुआ वहां पर जोरा के बल्ले से। प्रयास कर रहे हैं एक मैच में अंतिम चमक से बना होगा भारतीय गेंदबाजों को, कहीं ना कहीं अंकुश लगाना होगा, क्योंकि 12 रन इस ओवर में आ चुके हैं और एक काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ अर्शदीप का। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अगर आप स्लॉट पे गेंदबाजी कर रहे हैं ना, फिर आसान है। और इंतजार ही कर रहे थे बैकफुट पे, वो जो एंगल है वो भी मददगार साबित हुआ, क्योंकि एंगल के तहत गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, तो केवल वो टाइमिंग चाहिए था। और फिर से ये देखिए बहुत दूर गेंद जाके गिरी है। पहले हमने सीधे बैट से देखा था, एक खेमा नेपाल का, ये खुश नजर आता हुआ, एक उम्मीद जागी है। एक उम्मीद ये है कि हम करीब पहुंच रहे हैं। कठिन है
पर जैसे आपने कहा प्रवीण भाई, नामुमकिन नहीं है। 63 रन चाहिए 27 गेंदों में। कहते नहीं, खेल ऐसा है T20 का, बहुत जल्दी बदल जाता है। और ये खेमा भी चिंतित होगा। VVS लक्ष्मण, सराज भोतुले, इस बार सीधे बैट से फील्डर डीप में तैनात और सीधा हाथ में, यानी कि एक और सफलता मिलेगी यहां पे। कैंट से पानी होता है। गाइज हामी 50-51,000 छौँ। सबैजनाले सब्सक्राइब गरौँ है। सबैजनाले च्यानल सब्सक्राइब गरौँ, सपोर्ट गरौँ, किप सपोर्ट गाइज सबैजनाले। लाइभ कस्तो आएको छ र कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुन्छ कमेन्ट पनि गरौँला। सबैजनाले कमेन्ट गरौँ। गुड लक नेपाल आउनु पर्यो त्यहाँ गाइज, गुड लक नेपाल आउनु पर्यो। अनि गेम भइरहेको छ बब्बाल। No fruits on plate. देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और अच्छी बल्लेबाजी के बाद एक प्रयास शुरू किया था, फिर गेंद को बाउंड्री स्ट्रोक खिलाने को, और गेंद सीध चली गई वहां पर जायसवाल के हाथों में, और एक और सफलता भारत को मिलती हुई। 6ठा विकेट गिरा वहां पर नेपाल का। कोशिश करते हुए नेपाल के खिलाड़ी, मगर अब विकेट भी ज्यादा गिरते जा रहे हैं। अब बहुत ज्यादा बल्लेबाज नहीं बाकी हैं। बल्लेबाज के रूप में अच्छी गेंद थी वहां पर, बाहरी किनारे गई, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। 1 रन जरूर मिला बल्लेबाजों को। और अर्शदीप ने वापसी की थी वहां पर इस ओवर में। 2 छक्के जरूर लगे थे उस गेंद में। रिंकू सिंह अच्छे फील्डर के रूप में उभर कर आए हैं। जहां भी देखा कि उन्होंने कैच जो पकड़ा था, रिले कैच, बहुत अच्छा कैच पकड़ा। और यह है भारत की मेडल टैली जो कल तक थी। आज एक मेडल और ऐड हुआ है। और आर्चरी में भी भारत की टीम काफी अच्छा प्रदर्शन करके हुए सेमीफाइनल फाइनल में बढ़ती जा रही है एशियन गेम्स में। 141 6 विकेट नुकसान पर यह 16वां ओवर चल रहा है। 203 का लक्ष्य पीछे करते कामी 1 रन बनाकर खेले जी के झा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जिन्होंने अभी खाता खोला था। ये हवा में खेला गया स्ट्रोक। देखते हैं कि ये बैकवर्ड बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए अभी भी प्रयास जारी है। 147 6 विकेट नुकसान पर 16 ओवर की समाप्ति के बाद। 1-2边界6分。 कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन। खोलो ढक्कन डूबे डूबी डू, जिंदगी मक्खन। अमूल बटर। पतली पतली डिलिशियस। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अंतिम गेंद पर एक छक्का लगा और एक बार फिर उम्मीद जागी हमारे नेपाल को। 56 रन चाहिए 24 गेंदों पर। कार्य मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। आवेश खान आए हैं अपना ओवर लेकर, और एक अच्छी गेंद वहां पर बल्लेबाज को बीट किया वहां पर। गेंदबाजों को सही लाइन और नेट पे गेंदबाजी करनी होगी। अजय में ये जो रन लक्ष्य है मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। क्योंकि पिछला ओवर आप देखिए ना, 19 रन आए हैं और गेंदबाजी कौन कर रहे थे? अर्शदीप, जिनके पास वो अनुभव है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव है। और क्योंकि बाउंड्रीज भी इतनी बड़ी है नहीं, अब कई बार वो मिस हिट भी अब कैरी हो जाता है, 6 रन में कन्वर्ट हो जाता है। इस बार उठा के खेला है और साइड पे इनफील्ड को क्लियर किया। 4 रन और केवल गेंद को दिशा दी थी। और वो बाउंड्रीज आती रहेंगी ना, तो ये नहीं कि नेपाल जानती है कि आप जितना करीब पहुंचेंगे उतना बेहतर है। एक आध बड़ा ओवर अगर आता है तो वो उनके पक्ष में जाएगा। 9वीं बाउंड्री इस इनिंग्स की, और बहुत ही खूबसूरत शॉट था। केवल गेंद को दिशा दी वहां पे। पिछले ओवर में 19 रन आए थे। अगर 18 रन के औसत से रन बनाए हैं तो शायद नेपाल ये मैच जीत सकता है। और अच्छा शुरुआत हुई है पहले ओवर में, हालांकि पहली डॉट बॉल थी, फिर बाउंड्री आई। 9 चौके और 12 छक्के लगे हैं। ये दर्शाता है कि बाउंड्री कम छोटी जरूर है और प्रयास भी कर रहे हैं, तो फिर बाउंड्री स्ट्रोक्स आ रहे हैं।
अच्छी वापसी वहां पर आवेश खान की गेंद को शर्मा विकेट कीपर, हालांकि बल्लेबाज थोड़ा सा नाराज थे कि शायद देख रहे थे वाइड का इशारा होना चाहिए था, गेंद ऊंचाई काफी थी मगर फायर का निर्णय गेंदबाज के पक्ष में जाता हुआ। 52 रन चाहिए 21 बॉलों पर। भारत को वुमेन्स हॉकी में भी मैच खेलना है और अच्छा जीत लिया भारत ने मैच, माफ कीजिएगा, इंडियन ने 13-0 से भारत ने मैच जीतकर आगे बढ़ा। यह हांगकांग चाइना के विरुद्ध मुकाबला था जो 13-0 से जीता भारतीय टीम ने, वुमेन्स टीम ने। तो अच्छी शुरुआत उनके लिए भी। पर थोड़ा सा हमने देखा आवेश खान को जब थोड़ी बैक ऑफ लेन गेंदबाजी करी है, शायद ये ऋतुराज गायकवाड़ भी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि थोड़ा सा परेशानी में डाला बल्लेबाजों को, क्योंकि अब कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। 51 रन की दरकार है 20 गेंदों में, तभी भी अब लक्ष्य काफी कठिन है नेपाल के लिए, इतना आसान रहेगा नहीं। खासकर अगर डॉट डिलीवरीज आती हैं तो वो दबाव बढ़ता ही जाएगा, उस पर ध्यान केंद्रित, थोड़ा फील्ड बदलाव। जो शॉट थर्ड पे अब खिलाड़ी आता हुआ, वो डीप थर्ड पे था। ये बैट बाउंस था विकेट कीपर के आगे गिरी थी गेंद, थोड़ा सा और गेंद उनके हाथ से छटक कर चली गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाद। हालांकि गति में परिवर्तन किया था, गेंद पहले गिर गई थी और थोड़ा सा मिट्टी भी निकली वहां से विकेट के आगे से और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। 4 रन अतिरिक्त वहां पर मिलते हुए और एक बार फिर थोड़ा सा लक्ष्य कम होता हुआ। 47 रन बनाने हैं बची हुई 19 गेंदों पर। 156 6 विकेट नुकसान पर 12 एक्स्ट्रा साथ बार दिए हैं। गेंद को उछाल दिया है, देखते हैं कि वहां पर फील्डर मौजूद है और अच्छा कैच वहां पर साई किशोर के द्वारा, बहुत बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर और भारत को मिलनी हुई 7वीं सफलता। ओवर की समाप्ति 156 7 विकेट नुकसान पर। क्याच 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 तगडा क्याच गरे यार केटाहरूले। गाइस 7 विकेट गइसकेको छ, 7 विकेट गइसकेको छ। अनि 16.5 ओभर, 3 ओभर बाँकी छ। 3 ओभरमा ल्याउनु पर्यो। माइ गड 44 45 50 रन ल्याउनु गाह्रो छ। गाइस सपोर्ट गरौँ, किप सपोर्ट गाइस, सबैजनाले सपोर्ट गरौँ है, किप सपोर्ट। अनि सब्सक्राइब गरौँ सबैजनाले, च्यानल सब्सक्राइब गरौँ सबैजनाले, च्यानल सब्सक्राइब गरौँ, च्यानल सपोर्ट गरौँ है। अनि लाइक गरौँ, लाइक पुगेन गाइस, 53,000 सब्सक्राइब पनि पुगेन। सब्सक्राइबर 53,000 भएको मान्छेहरू या सबले सब्सक्राइब ठोकौँ न गाइस, सब्सक्राइब ठोकौँ। सब्सक्राइब रातो बटनमा क्लिक गरौँ न सबैजनाले, फास्ट गाइस, सब क्लिक गरिहालौँ फटाफट सब्सक्राइब। हामी गेम हेर्छौँ, एचडी क्वालिटीमा गेम हेरिरहेको छु गाइस, आफू गेम हेरिरहेको छैन तर एउटा गीत देखाइरहेको छु। सो सबैजनाले त्यसको लागि सपोर्ट गरेर सब्सक्राइब गरिदिउँ ल। और अंतिम गेंद पर सफलता मिलती हुई वहां पर आवेश खान को। 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और भारत एक बार फिर वापसी करता है। अर्शदीप अपना अंतिम ओवर लेकर आगे बढ़ते हुए और फिर शॉट में गेंद थी, उछाल खेला है वहां पर, फिर सीधा कैच वहां पर यशवी जायसवाल को और एक 8वां झटका लगता हुआ वहां पर। अब भारत की नीच लगभग निश्चित होती जा रही है। बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे, थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। बचपन की डाली पे ख्वाब। और 8 विकेट गिर चुके हैं नेपाल के। अब लगता है कि भारत की जीत काफी करीब आ चुकी है और अर्शदीप को मिलने वाली दूसरी सफलता थी वहां।
पिछले ओवर में भी उन्हें एक विकेट मिला था। जयसवाल को दूसरा अच्छी गेंद धीरे से प्लेस किया, उसे ऑफ साइड पर रन लिख चुका लिया बल्लेबाजों ने और 157 8 विकेट नुकसान। जी हाँ बिल्कुल, ये भारतीय खेमा वीवीएस लक्ष्मण, सराज भूतुले जो कि जुड़े हुए हैं भारतीय टीम के साथ, इनके जो इनपुट्स हैं काफी फायदेमंद साबित होंगे ये युवा खिलाड़ियों के लिए। थोड़ी समस्या जो नेपाल की है क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा था तो वो बड़े शॉट्स के लिए जाना ही था। 8 विकेट गंवा दिए, 18वां ओवर चल रहा है अभी। संदीप लामिछने आए हैं नए बल्लेबाज, केसी वहां पे मौजूद हैं। 46-16 गेंदों में लगातार वो कठिनाई बढ़ रही है नेपाल के लिए। इस बार एक मौका हो सकता है रनआउट का। जी हाँ, डायरेक्ट हिट की दरकार थी। बैकअप बहुत अच्छा, काफी आगे निकल गए थे वहां पे, पर ये बैकअप की तारीफ करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट हिट होती तो इस एंगल से भी प्रतीत हो रहा है कि जी हाँ बहुत दूर रह गए थे, बहुत दूर। और थोड़ा सा अर्शदीप को भी विकेट के पीछे, हालांकि कई बार आप फॉलो थ्रू में होते इतना आसान रहता नहीं, थोड़ा विकेट के पीछे होते तो और आसान होता। हालांकि समय था उनके पास, अर्शदीप के पास, मगर रनआउट का मौका बना था वो गवा दिया। और ये अच्छी गेंद थी, वहां पर यॉर्कर लेंथ पे इसको ड्राइव किया, उसे ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर फील्ड किया जाएगा। 203 का लक्ष्य का पीछा करते 158 8 विकेट नुकसान पे 18वां ओवर चल रहा है। भारतीय खेमा काफी खुश है और नेपाल के खेमे में थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि ये मैच हारने के बाद वो लोग इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। भारत की टीम फिर मेडल तालिका में आगे बढ़ती नजर आएगी। पोडियम फिनिश करना है तो भारत को अगला मैच भी जीतकर आगे बढ़ना होगा और भारत के लिए काफी उम्मीदें हैं कि वो गोल्ड मेडल जीत कर आएगी क्रिकेट मैन में भी। अच्छी गेंद वहां पर, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बल्लेबाज बीट हुए डॉट बॉल आती हुई, तो डॉट बॉल से प्रेशर बढ़ गया है। हालांकि अब बहुत मुश्किल नजर आता हुआ है नेपाल के लिए। 158 8 विकेट नुकसान पर 45 रन चाहिए 13 गेंद पर। हमने आईपीएल में देखा था कि आईपीएल में काफी बड़ा स्कोर लास्ट के अंतिम 3-4 ओवर में बल्लेबाजों ने बनाया था। रिंकू सिंह उसका एक उदाहरण थे, जिन्होंने अंतिम ओवर में 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को मैच जिताया था। क्या नेपाल के बल्लेबाज ऐसा कर सकते हैं? एक बार फिर फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला ऑन साइड पर और ये मिसफील्ड एक और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए ओवर की समाप्ति 162 8 विकेट नुकसान पर। बाउंड्री फॉर नेपाल। लटके गांव की बहुत याद आ रही है, पता नहीं कब जाऊंगी। देखेंगे मॉम। हे चैंप, रेडी फॉर स्विट्जरलैंड? नो पापा, नो स्विट्जरलैंड। तो कहाँ? दादी के गांव। थोड़े से मैंने अपने जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी, जी माने जीनियस। So the penultimate over, bowled by the front line seamer. Just coming as, as you say, brought back. Perhaps trying to just clean this up now. You know, the teams tend to have their number one bowler tends to bowl the penultimate over in a run chase because they always want to have a large score to have to go and get in the last over. You never want to have your best bowler having to defend 3 or 4. That's been hit sweetly. No need to jump for that one. Boundary 6 for Nepal. Kishore just watches that one go over the top. They're still wagging the tail. Oh, this is another clean strike from a back of a length delivery. I tell you, I'd be very interested to know, as far as the boundary count goes, if Nepal have hit more sixes than India. It must be close. Well, I think that's their 13th, isn't it? And
Edge and 4. Yeah, I think it was 12 from Boundary India. ball for Nepal. Well, here we go. Here we go now, because there's 10 of 3 deliveries. So we're definitely going down to the last. Just what can they do of these last 3 deliveries to put that 5th bowler, and we don't know who it's going to be, to put him under immense pressure. Better. Good comeback. Oh, keeper stopped that one. Yeah. Don't think he'd be keeping in the next match if he had let them gone through. 2 boundaries here would be very interesting for Nepal. Doesn't have to both be out the ground. A 6 and a 4 would be lovely if you're a neutral. Well, obviously there's odds stacked against them, but just bear in mind they're going at 9.2 and over themselves. That's against India. That's not a bad effort. Great effort. Closer than many thought. The Indians have gone a bit quiet in the crowd. So have the Nepali fans as well. There's a man down there. Will just be a single. Nicely bowled. Nicely bowled. He was expensive in the first 3. He's gone for a few here in this 4th over. Khan not been plain sailing for him. Has a couple of wickets. Well, both their spinners went for 6 and over. Up in the air, should be taken, and is. He's had some catches to take down on that long on boundary. That. बैग किसका है? मेरा. No fruit on plate. नहीं है. अच्छा, ये क्या है? देखो, किधर है? ये लो. पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना? और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। It's a good catch, a bit easier this time. Didn't have to put the dive in. We've got Avinash Bohara. One more over to go. 30 needed. So the ball gets thrown to Shivam Dubey, who has all of 30 to defend. So that's the reason why they bowl the number 1 bowler, that penultimate over. It just eases the pressure a little bit on the 5th bowler. Everything's got to go out the ground. Swing and a miss, and India can start to breathe easy. Yeah, and in the context of it, people will look at the scorecard and see India win by X amount of runs and say, well, that's pretty comfortable. But I tell you what, there's been periods of this game where India would have got a few jitters. Granted, there's a number of their players that are doing duty for India at a 50-over World Cup at home, who would ordinarily make this team. But the depth that India has in comparison to the depth that Nepal has, this has been a wonderful performance by Nepal in this quarterfinal. Oh, good fielding of his own bowling. Dubey has been taken to the boundary several times. It's been a bit of a difficult spell for him, but he's coming back well in this last one. Another miss.
much better. This innings that started with a bang is ending with a bit of a whimper. Well, where were these Yorkers? Mind you, you are bowling to the last pair. You know it's in the bag. You relax a little bit, don't you? And that helps. Still trying to find the boundary. One more ball to go. Nepal will depart this competition, but not without a few records and a bit of respect to their name. Finish their innings. Finish their innings. And that about sums up the attitude they've had all the way through. It's India who progressed to the semi-finals, but Nepal who have impressed, and one of points. He's also very tall, very cool and calm, and of course he will be against, as I said, a bunch of defenders who don't have a very specific role, because Kamraju Kadraka will be there in that right corner. He will also be there in the right lane, and then there is also Kunal Bhoy in the right cover, who always goes across and tries to have the dash against the Raiders. Got into a bit of a trouble as well, Kunal Bhoy, generally. So yeah, it's going to be a mix of defense which is not very strong, and I feel, somehow in the bottom of my heart feel actually Suresh Orgunti will have a slight upper hand over Maurya Mavericks. But let's see how that match will pan out. But the match that is going to happen in a very few minutes from now, the Chambal Challengers, the Thai Masters against the Himalayan Tars, and of course, yes, who's that man? Sanskar Mishra. He should definitely be going ahead and making sure that the... थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई अहिलेसम्म भिडियो हेरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको सबैजनालाई धन्यवाद। अन्तिमसम्म सबैले हेर्नुभयो, सर्ट आउट दिनुभयो, सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएको सबैलाई धन्यवाद। जो हुनुहुन्छ सब बाँकी हुनुहुन्छ सबैजनाले च्यानललाई सब्सक्राइब छोडिदिनु होला। र आजको गेम यही सकिन्छ। सो नेपाल इन्डिया विन भइसकेको छ। अब नेपाल हार्यो भने एकदम मजा लागेन। सो